سری نگر کے نٹیپورہ علاقے میں ملیٹنٹوں نے دن دہاڑے سینئر PDP لیڈر حاجی پرویز احمد پر ان کے گھر میں حملہ کیا۔ حاجی پرویز کے محافظ کی بہادری کی وجہ سے یہ حملہ ناکام بنایا گیا۔ اس دوران پرویز کے محافظ منظور احمد بٹ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ انہیں اسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہادت پا گئے۔ حملے کے بعد کئی سینئر پولیس اور CRPF عہدیداروں نے جائے واردات کا دورہ کیا اور حالات کا جائزہ لیا۔ PDP جنرل سیکرٹری غلام نبی لون ہانجورہ سمیت پارٹی کے کئی دیگر لیڈران نے بھی حاجی پرویز کے گھر جا کر حالات سے واقفیت حاصل کی۔ میرا جو بازو تھا PSO میرا وہ شہید ہو گیا، میں نے ابھی سنا۔ اب کیا بتائیں، یہ گورنمنٹ کو دیکھنا ہے، گورنمنٹ ابھی بھی سوئی ہے، پتہ نہیں یہ بیچارہ ایک انسان ہی مرتا ہے نا، چاہے کوئی سیکورٹی والا سول ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیورلی سیکورٹی لیپس ہے۔ ہم نے بارہا، ہماری پارٹی نے، ہمارے پریزیڈنٹ نے اور ہماری پارٹی کے لیڈروں نے ہمیشہ لیفٹننٹ گورنر سے یہ استدعا کی ہے کہ سیکورٹی جو بھی جتنے بھی لیڈرز ہیں، جتنے بھی پارٹیز کے لیڈرز ہیں، چاہے وہ BJP کے ہیں، اپنی پارٹی کے ہیں، PDP کے ہیں، NC کے ہیں، ان کو سیکورٹی فراہم کی جائے۔ لیکن بدقسمتی سے کسی کو سیکورٹی فراہم نہیں کی جاتی ہے، ماں سوائے BJP کے اور جو ان کی ہم جماعت ہے اپنی پارٹی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایز جنرل سیکرٹری آف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی یہ سیکورٹی لیپس ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سری نگر شہر میں آج دن دہاڑے ملیٹنٹوں نے یہاں پہ PDP لیڈر حاجی پرویز کے گھر پہ حملہ کیا اور اس حملے میں جو ہے ان کا ایک PSO جو ہے منظور احمد بٹ وہ جان بحق ہو گیا ہے۔ دوسری اور اگر ہم بات کریں سیکورٹی کے حوالے سے تو حاجی پرویز کا کہنا ہے کہ ان کی سیکورٹی پہلے ہی کم کر دی گئی تھی، جو ان کو PSOز ہیں ان کو کم کر دیا گیا تھا، تاہم جتنے بھی PSOز یہاں پہ تھے انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کے اس حملے کو ناکام بنایا اور جو ملیٹنٹس یہاں پہ حاجی پرویز کو ٹارگٹ کرنے آئے تھے ان کو گھر کے اندر گھسنے نہیں دیا۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ DDC چناؤ یہاں پہ چل رہے ہیں اور ایسے میں پولیٹیکل لیڈرز پہ حملہ ہونا یہ ایک سوالیہ نشان اٹھاتا ہے سیکورٹی پہ بھی۔ جہانگیر عزیز کے ساتھ پرویز بھٹ، نیوز 18 اردو، سری نگر۔ DGP جموں کشمیر دلباغ سنگھ کا کہنا ہے کہ جمہوریت کو مضبوط ہوتا دیکھ کر پاکستان میں ملیٹنٹ ہینڈلرز بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ DGP نے کہا کہ PDP لیڈر پر حملہ اور پونچھ میں 2 ملیٹنٹوں کی ہلاکت سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان جموں کشمیر میں جاری انتخابی عمل میں خلل ڈالنا چاہتا ہے۔ PDP لیڈر حاجی پرویز کی سیکیورٹی ہٹانے سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے DGP نے کہا کہ PDP لیڈر کو اضافی سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی اور انہیں اس علاقے سے ہٹنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے اسے انکار کیا۔ سنگھ نے کہا کہ DDC امیدواروں کو مناسب سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔ DGP IGP کمشنر کشمیر سمیت اعلیٰ پولیس افسروں نے شہید کانسٹیبل منظور احمد کو DPL میں خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد میں منظور کے جسد خاکی کو ان کے آبائی مقام روانہ کیا گیا۔ Enthusiasm of the people with which they are coming out and participating in the elections is commendable, and very elaborate security arrangements have been made along the polling routes, polling stations and the polling places. But despite best of your arrangements that you make, you cannot put 100% curfew or civil curfew where people are not allowed to move. People have to go. It's a big exercise, as I said. The motive is to disturb the ongoing process of electioneering, which is a very, very big event, and people are very enthusiastically participating in that. And this is also an attempt to disturb the peaceful environment that we have brought in with the cooperation of the people and hard work of the security forces and police. We have got enough evidence with us incriminating Pakistan in not only training people, sending terrorist outfits to this side of India to disturb the ongoing process. This incident also is part of the same design, part of the same conspiracy. We would bring the persons accused in this case to book.
पुंछ में फौज और पुलिस ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डगरा इलाके में हुए एनकाउंटर की तफसीलात फराहम की गई। कर्नल KL शर्मा, DIG विवेक गुप्ता और SSP रमेश अंग्राल मौजूद थे। SSP ने बताया कि मुगल रोड पर डगरा इलाके में कल 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों को सरेंडर करने का मौका दिया गया, लेकिन वो नहीं माने। मिलिटेंटों के एक मकामी साथी को गिरफ्तार किया गया है। SSP ने बताया कि इलाके में ऑपरेशन जारी है। फौजी अफसर ने बताया कि एनकाउंटर में मारे गए मिलिटेंट DDC चुनाव के दौरान किसी बड़ी कार्रवाई का इरादा रखते थे। मिलिटेंटों से बरामद हथियारों को भी मीडिया के सामने पेश किया गया। हमारे ऑपरेशंस ने इस पूरे इलाके को घेर लिया, सभी रास्तों को बंद कर दिया। इनको हमने आखिरकार कुशाना के इलाके में घेर लिया और इनको सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन इन्होंने हमारी पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कि हमें जवाबी कार्रवाई में इन पर फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग के दौरान दोनों आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए। पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम इलाके की आवाम को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, जिन्होंने सही समय पर खबर देकर इस इलाके से आतंकवाद को ख़त्म करने में मदद दी। जहाँ तक तल्लक है कि इस इलाके में टेररिज्म को रिवाइव करने की वक्तन फ़वक्तन जो है इस किस्म की इनपुट्स आती रहती हैं, और इस पे वक्तन फ़वक्तन जो है हमारी सिक्योरिटी ग्रिड जो है, जॉइंट सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो मुस्तैद रहती है, और हम सक्षम हैं किसी भी इस किस्म की कार्रवाई को नाकाम बनाने। एंटी करप्शन ब्यूरो ने AAY राशन कार्ड घोटाला मामले में श्रीनगर और बारामूला के 21 मकामात पर छापे मारे। ज़राए के मुताबिक मुतल्लिका महकमे के 5 असिस्टेंट डायरेक्टर्स, 7 तहसील सप्लाई ऑफिसर्स, 9 स्टोर कीपर्स, 2 फेयर प्राइस शॉप ऑनर्स और डायरेक्टर ऑफिस में तैनात एक एग्जामिनर के ठिकानों पर छापे मारे गए। ज़राए का कहना है कि मुस्तहिक सार्फिन को बरसों तक राशन सप्लाई नहीं किया गया, बल्कि सार्फिन की जगह महकमे CAPD के मुलाजमीन ने 500 राशन कार्ड बनवा लिए थे। आम आदमी पार्टी जम्मू यूनिट की तरफ से एक रोजा भूख हड़ताल की गई। ये भूख हड़ताल किसानों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर की गई। उनका कहना है कि किसानों के साथ इंसाफ करके किसानों से मुतल्लिक कवानीन को जल्द वापस लिया जाए। पार्टी लीडरान ने इल्जाम लगाया है कि मोदी सरकार ने किसानों से किए गए वादों के बरअक्स नए कवानीन लाए हैं। उन्होंने एहतजाज जारी रखने की धमकी दी। मांग करते हैं कि किसान जो पिस रहा है, किसान सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं है, कंज्यूमर भी है, और इसलिए देश के सभी उपभोक्ता जो कि किसान की उपज लेते हैं उस अन्नदाता के सपोर्ट में खड़े होने चाहिए। इसलिए आम आदमी पार्टी ने एक दिन का जम्मू संभाग के अंदर उपवास रखा है। पूरे का पूरा बिल के अंदर संशोधन नहीं, बिल रद्द किया जाए। जम्मू की कई किसान तंजीमों ने एक एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी किसानों से मुतल्लिक नए कवानीन को जल्द वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। उनका इल्जाम है कि मरकजी सरकार किसानों के मफादात को नजरअंदाज कर रही है। कई मकामात पर एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान नोकझोंक भी हुई। एहतजाजियों का इल्जाम है कि मरकज चंद कारोबारी घरानों को फायदा पहुंचाने का ही काम कर रही है। एहतजाजियों ने धमकी दी कि मुतालबात पूरे न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। प्रोटेस्ट केंद्र सरकार दे उस फैसले के खिलाफ है जिहड़ा केंद्र दी सरकार ने किसानों के विरोध दे विच कृषि कानून लेके आई है। अज इस देश दे विच हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं चलेगा, इत्थे अज संविधान चलेगा जो बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया सी। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के बैनर तले अनंतनाग में लोगों ने किसानों के हक में एहतजाज किया। मुजाहिरीन की क़यादत CPIM जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी और किसान तहरीक सरबराह गुलाम नबी मलिक कर रहे थे। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी कब्जों का बहाना बनाकर अब सरकार यहां के लोगों को भी ज़मीन से बेदखल कर रही है। मुहिम के नाम पर दरख्तों की कटाई भी की जा रही है। सरकार लोगों से जो काफ़ी उर्से से 70-75 बरसों से जो काश कर रहे हैं उस ज़मीन को गैर कानूनी कब्जे के नाम पर उनसे हटाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि मतलब ये ज़मीन छोड़िए, और इतना ही नहीं बल्कि मतलब उस ज़मीन पर जो
मेवादार दरख्त हैं, हज़ारों दरख्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ वादी कश्मीर में काट भी दिए। या इस डायरेक्शन को बिल्कुल वापस लिया जाए और ये कानून यहाँ पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली में एहतजाज कर रहे किसानों की हिमायत में आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में किसान तहरीक जम्मू कश्मीर ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने ज़राए क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अपने हुकूक मिलने तक किसान अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जो कानून बनाए गए हैं, 3 कानून हमारे किसानों के खिलाफ, पूरे देश में जो किसान अभी आज कुछ सालों से जूझ रहे हैं परेशानियों से, उस हवाले से आज एहतजाज है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत के हर रियासत में, यहाँ भी जम्मू कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट में आज एहतजाज हो रहा है। कठुआ के सरहदी ब्लॉक मरहीन के किसानों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि मरकजी हुकूमत की पॉलिसियां किसान मुखालिफ है, तभी तो किसान अपने हक के लिए सड़कों पर है। एहतजाजियों ने कहा कि अगर हुकूमत उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो वो मरण व्रत करेंगे। का विकास नहीं होता है, दूसरा पाकिस्तान इनके पर गोले बरसाता है, और तीसरा मोदी सरकार ने जो नीतियां अपनाई हैं, एक तो फसल के भाव नहीं है, जो 3 काले कानून पास किए हैं, इनसे ये दुखी किसान मरने के लिए तैयार है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मजाज कब्जों के खिलाफ मुहिम चलाई। लाल चौक, गुरुद्वारा रोड, अमीरा कदल रोड, कोकर बाजार, महाराजा बाजार और आसपास के इलाकों में चीफ एनक्रोचमेंट ऑफिसर उमरुद्दीन की निगरानी में मुहिम चलाई गई। इस दौरान छाबड़ी फरोशों और दुकानदारों की तरफ से दुकानों के बाहर रखे गए सामान को हटाया गया। केलर शोपियां के लोगों का इल्जाम है कि जंगलात का बड़े पैमाने पर सफाया किया जा रहा है। उनका इल्जाम है कि रोजाना कई लोड कैरियर गाड़ियां गैर कानूनी तरीके से जंगलाती लकड़ी के लिए ले जाती हैं। उनका इल्जाम है कि मुतल्लिका महकमा कुछ नहीं कर रहा है। लोगों ने महकमे जंगलात के कुछ एहलकारों और स्मगलरों के बीच साजबाज का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि हुकाम के नोटिस में लाने के बावजूद कुछ नहीं किया जा रहा। लोगों ने कहा कि लकड़ी ले जा रही एक गाड़ी को तकून के मकाम पर हादसा पेश आया। उनका इल्जाम है कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और महकमे जंगलात के अहदेदारों ने हुकाम को गुमराह करने के लिए कहा कि उन्होंने कार्रवाई करते हुए लकड़ी और गाड़ी जब्त की है। लोगों का इल्जाम है कि इस सिलसिले में महकमे जंगलात के जारी करदा प्रेस बयान में कोई हकीकत नहीं। मकान बनावन मे लकड़ी एप्लिकेशन कर डिपार्टमेंट लग्स 10 फुट 20 फुट डिजर्व कर डिपार्टमेंटस लकड़ी आज वात वल थव सैंक्शन 5 वन पोकुस कहें तुम बहुत मजबूर अन्न खतर बह लकड़ मई कि मान जाए पकन पर डे 30 गुड़ वसान फाड़ 4 गाड़ फाड़ वसान जंगलात वाले से मिली भगत बिल्कुल जनाब जंगलात वाले तो स्मगलरन मिली भगत नत कित छुन कुल चोर तम आई पछावन पत तम गाड़ भरन पत वतन योतन अद गई ये गाड़ डुल इत काल में मिली भगत पान वन पत गामन ये अद जंगलात वाल फाड़ तो गाड़ खतर गो जंगलस जंगलस खतर कार्रवाई गई सोन कहीं बोदान वोत वुमर खसूसन वोत मे वन वुमर इन अत करो जंगलस करो तहफुज जंगलस करो तहफुज क्या अगर सान बच्चे अत में मुलाजिम लगे तुंद मा लगन पथ कुन बे क्या तुम हसा सान जंगल शकदर छो तुम करो अत देखभाल ना तस से मस ग न डेफू साहब अमुक बोजन न चीफ कंसर्वेटर। जमीयत अहले हदीस के मकतूल सदर मौलाना शौकत के भाई और बेटे ने मौलाना के कातिलों को रिहा न करने की अपील की है। प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में मकतूल के बेटे ने कहा कि जब जांच एजेंसियों ने कसूरवार ठहराया है तो फिर इन अफराद को रिहा क्यों किया जा रहा। 2011 में नामालूम बंदूक बरदारों ने मौलाना शौकत को हलाक किया था। NIA ने पहले ही एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए इस केस में किसी की भी रिहाई की तरदीद की है। हुकूमत हमसे ये कहना चाहती है कि आपके इंटेलेक्चुअल्स के कातिलों को हम ऐसे ही बरी करते रहेंगे। हमने उस वक्त भी इस ऑल पार्टी जो कमेटी बनी थी उन्होंने आपके सामने मीडिया में वो रिपोर्ट्स ऑलरेडी प्रेजेंट की है जिस रिपोर्ट में इनको कातिल करार दिया गया है। हम इस कोर्ट के डिसीजन को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं और हम इस कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानते। ये हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है क्योंकि हमने अपना केस जो है अल्लाह की अदालत में रखा हुआ है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।